Today we'll discuss about the JSA. JSA क्या होता है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और JSA को समझेंगे कि JSA को बनाया किस तरीके से जाता है, JSA बनाने का पर्पस क्या होता है और JSA किस तरीके से क्या स्टेप्स को फॉलो करते हुए चीज़ों को हम समझेंगे आज. ओके, JSA का डेफिनेशन क्या होता है, JSA को किस तरीके से टास्क में डिवाइड किया जाता है. So JSA basically is what? Job safety analysis. In job safety analysis, you need to understand कि at the time of while working, what are the hazards over there, and what are the preventive measures? What are the preventive measures which you need to apply at the time, like while working? Workers are working, so what are the hazards over there, and what are the preventive measures? Okay, which you need to apply. Means you have to identify the hazards. Okay. That comes under job safety analysis. So job safety analysis, here you go with the questions, which is what is JSA. So job safety analysis is the step-by-step analysis of a job to determine the safe working procedures, or job safety analysis is a safety tool that can be used to define and control the hazards associated with a particular task or job operation, and it is a systematic examination or documentation of every task within each job to identify the hazards. So here you will easily identify कि job safety analysis क्या होता है, definition किस तरीके का होता है. तो definition में आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि इसमें main जो है hazards associated, what are the hazards associated with a particular जॉब ऑपरेशन. जो आप जॉब करने जा रहे हो उसमें क्या हैजर्ड्स है. सो जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA जो कहता है कि उसमें पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड क्या हैजर्ड्स है, वर्कर्स को काम करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, किन किन हैजर्ड्स को फेस करना पड़ सकता है वर्कर्स को, और उसमें हम क्या सेफ्टी मेजर्स अप्लाई करेंगे, क्या सेफ्टी फॉलो करेंगे. व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स व्हिच यू नीड टू अप्लाई एट द टाइम व्हाइल वर्किंग. अंडरस्टूड. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी हम काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें JSA फॉर्म फिलअप करना होता है, JSA भरना होता है. जैसे हम परमिट इश्यू करते हैं, टूल बॉक्स स्टॉक लेते हैं, उसी तरीके से JSA भी एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि हम काम करते समय JSA को भी फॉलो करते हैं. तो आप लोगों को ये समझ में आया कि व्हाट इज JSA, राइट? अंडरस्टूड एवरीवन. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि JSA के क्या क्या टास्क होते हैं. जैसे कि हमने समझा व्हाट इज JSA, then what is the purpose of JSA, then third step में what are the steps in JSA, then fourth is what are the advantage of JSA and how to prepare. So second step में हम ये समझेंगे what is the purpose of JSA. JSA का क्या purpose है. So in the occupational health and safety industry, the purpose of the JSA is to identify the dangerous or specific task within job in order to reduce the risk level of injury or to the workers while working. So here you will identify the purpose of JSA is to identify the occupational health safety related industry, and the purpose of that is to identify the hazards and also to reduce the injury while working. Understood? Then in third, what are the steps? So in third question में हम ये समझेंगे कि क्या क्या steps होते हैं JSA में. So here you can select the job to be analyzed. सबसे पहले आपको जॉब सिलेक्ट करना है कि किस टास्क को आपको एनालाइज करना है. ओके. Then second is breaking the job down into a sequence of the steps. Then third is identify the potential hazards, and the last one is determining the preventive measures to overcome these hazards. So इस hazards को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है जो पर्टिकुलर टास्क में आने वाला है, और उस टास्क को कैसे सेफली कंप्लीट किया जाए. सो आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप आसानी से JSA के बारे में समझ सकते हो कि जो भी जॉब आप करने जा रहे हो इसका सबसे पहले एनालाइजेशन करना है. उसके बाद में ब्रेक डाउन इनटू अ सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस. जैसे कि मान लीजिए आपको अभी मटेरियल अनलोड करना है, तो सबसे पहले आप
प्रॉपर पीपीई पहनोगे, उसके बाद में एक एक मटेरियल को हैवी लोड लिफ्टिंग नहीं करोगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े सामान को निकालोगे। जब ज़्यादा हैवी मटेरियल है तो आप क्रेन को बुला सकते हो, क्रेन को बुला के उसको बांध के और फिर आप एक जगह से दूसरी जगह हैवी मटेरियल को लिफ्ट कर सकते हो। जो स्मॉल मटेरियल्स है, छोटे मटेरियल्स है, जिनका वेट कम है, उनको आप आसानी से पहले निकाल लीजिए। जो हैवी बल्की मटेरियल्स हैं उनको आप क्रेन के सपोर्ट से निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू नीड टू गो विद दिस स्टेप बाय स्टेप। देन फोर्थ वन इज व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ JSA। सो यहाँ पे हम एडवांटेजेस क्या क्या है वो समझेंगे। इट हेल्प्स to identify the hazards and prevent you, it will also prevent the accident. Okay, then next is it helps to establish the safe work method। JSA को फॉलो करते समय जो हम फोर्थ एडवांटेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आइडेंटिफाई दी हैजर्ड्स और एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। इट विल ऑल्सो एस्टैब्लिश द सेफ वर्क मैथड। इट हेल्प्स फॉर द इंस्पेक्शन टू द प्लांट और द कंस्ट्रक्शन साइट्स और द इंडस्ट्रीज। ओके, आप JSA फॉलो करते हो तो कहीं पर भी इंस्पेक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, प्लांट्स पे, इंडस्ट्रीज के इंस्पेक्शंस, तो आप आसानी से इस तरीके को पूरे JSA को फॉलो करते हुए आप उसका इंस्पेक्शन वगैरह भी कर सकते हो। इट हेल्प्स टू असेस द सेफ ट्रेनिंग एंड इट ऑल्सो हेल्प्स टू मीट द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इज टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन एंड प्रिवेंशन फ्रॉम द हैजर्डस कंडीशन। So these are the different steps in JSA जो कि आज हमने सीखा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि JSA को बनाया कैसे जाता है बाय चार्ट वाइज कैसे हैजर्ड्स को एनालाइज करके और क्या सेफ्टी प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई किया जाता है, तो हम चार्ट के जरिए समझेंगे। अंडरस्टूड?